Hello everyone, good evening. Is my voice is audible? If I am audible, please respond. I'm so sorry because of here power cut. I'm not able to join 6 p.m. I'm so sorry. If anyone in live, please comment here. Am I audible? Hello. Let's wait for 1 or 2 minutes. Hello. Yeah, let me start my session. And I'm so sorry, I'm really so sorry. Due to a power cut in my place, I'm unable to join in time around 6 p.m. And first of all, thank you Surabhi ma'am for giving such a great platform to present yourself. Thank you lot Surabhi ma'am. And I'm really sorry Surabhi ma'am, due to of some reason I'm not able to participate on time 6 p.m. So is it my voice is audible and my I think background is not there, my face is audible? If voice is audible, please reply here so that I can acknowledge here. I'm so sorry to all and I'm so sorry Surabhi ma'am. Let wait for 1 minute, let people join. Hello Surabhi ma'am, I'm so sorry ma'am, actually here power cut happening, so I am just thinking I will do now or later. So I missed your call, I saw you, I'm so sorry. Is my voice is audible ma'am? Can you please reply me? Thank you very much. Thank you very much. Thank you for watching me and thank you everyone. Hi Pragati. Thank you for replying. Yeah. Let me start my session. First let me give me my introduction here. So myself Lipsa here, Lipsa Rani Raut. I'm basically from Odisha and I'm living in Chennai. Due to of COVID मैं अभी घर पे आई हूँ उड़ीसा में. तो यहाँ पे पावर कट होता रहता है, तो दैट्स वाई इज़ गेटिंग लेट. सो नॉर्मली मैं एक BCA एंड MBA ग्रेजुएट हूँ. आई हैव 8 year plus corporate experience. ड्यूरिंग दिस कोविड आई लॉस्ट माई जॉब एंड आई इन स्कूल लाइफ में जैसे कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग करते रहती थी, तो बट स्कूल लाइफ के बाद वो प्लेटफॉर्म बहुत छोटा हो गया था. मतलब उसके बारे में करने के लिए कभी टाइम नहीं मिला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था. तो ये जो लॉकडाउन हुआ तो मुझे एक परफेक्ट टाइम मिला कि मैं क्या चाहती हूँ, कौन सा लाइन में जाना चाहती हूँ. तो मैं बैंकिंग का कैरियर स्टॉप करके मैंने पब्लिक स्पीकिंग का कैरियर चॉइस किया. तो लास्ट 6 मंथ 7 मंथ जो पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है मेरा, ये मतलब लॉकडाउन में बहुत हट्टिक हुआ. बिकॉज जो मेरी लड़की जो सबके सामने बोल पा रही थी, वो सिंस 8-9 ईयर का गैप था, तो वो बहुत कैमरा फेस करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था. तो it was practicing and thanks to my mentor Seri sir and also Surabhi ma'am, many people they involved and now I am here. So basically I am a public speaker, motivation coach and I am a founder of Unique Speak. You can search in Facebook Unique Speak group and also Odia Talk. Like in regional language, Odia language, I have created a platform kind of TEDx. It's international, it's like a domestic in Odisha. So we have 40 plus speaker last 1 month. So we have arranging different sessions. This is kind of my profile. So today's topic is regrets of your life versus you. ये बहुत टॉपिक डिफरेंट है, मैं आप लोग को बता देती हूँ. रिग्रेट्स ऑफ योर लाइफ मतलब ऐसे कोई सिचुएशन होता है, हम लोग बहुत सारे चीज़ रिग्रेट करते हैं. तो क्यों रिग्रेट करते हैं, मेन चीज़ उसका बिहाइंड में कौन सा रीज़न होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है. तो उसके बारे में मैं ये 3 चीज़ सबको बताने जाऊंगी. तो मैं यहाँ पे सब लोग को क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का लाइफ में अभी तक कुछ रिग्रेटनेस है कि मैं ये करना चाहती थी नहीं कर पाई. कुछ रिग्रेट आप लोग करते हैं, अफसोस करते हैं, खास मैं ये कर सकती हूँ नहीं कर पा रही हूँ. प्लीज़ कमेंट हियर. आई विल गिव यू द सॉल्यूशन and is the exact time and you can do it also. If anyone watching me, please mention your comment
कि आप कभी कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए, कुछ ऐसे अफसोस और रिग्रेट है आपका लाइफ में? जैसे कि मैं मेरा एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुकी हूँ। मैंने स्कूल लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग का लाइन में जाना चाहती थी, बट मुझे पता नहीं था कि आफ्टर 10 ईयर का गैप होने के बाद नाउ 29 ईयर में मैं फिर से ही लाइन में बैक करूँगी। जो मेरा रिग्रेट था अभी वो फुलफिल करने जा रही हूँ। वैसे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ रिग्रेट रहता है, तो सबको मैंने एक चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे, जो लाइफ में हम लोग सारे, कोई भी ऐसे आदमी नहीं है कि कोई भी एक ह्यूमन नेचर नहीं है जो कि विदाउट एनी पर्पज़ में यहाँ पे आते हैं। सबका पर्पज़ डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आइडेंटिफाई योर ओन पर्पज़, व्हाई यू आर हियर, सो दैट व्हाई यू आर हियर, दैट क्वेश्चन विल टर्न टू यू द रिग्रेट। मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ अगर ये डिफ़िकल्ट होगा सोचने के लिए। जैसे कि 4 पॉइंट में बेसिकली आज बताना चाहूँगी। रिग्रेट क्यों करते हैं? बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आता है, मे बी ये नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन होता है, मे बी कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, वो काम नहीं करते हैं। और नहीं तो बहुत सारे हम लोग का उम्मीद रहता है, उम्मीद का चक्कर में भागते भागते हम नहीं करते हैं, और लिमिट बिलीविंग रहता है। तो चारों चीज़ के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ये 4 मेन पॉइंट जो है हमारे लाइफ में रिग्रेट रहता है। प्रगति है समटाइम, यस ट्रूली, नॉट समटाइम। एक रिसर्च सेज, आप खुद गूगल में सर्च कर सकते हैं, आउट ऑफ 100% पीपल, जो कि 10 और 20% पीपल रिग्रेट नहीं करते हैं, बिकॉज वो लाइफ का पर्पस जो है, मैं क्यों इधर हूँ, उनका पर्पस जो है समझ के उसी लाइन में जाते हैं। और मैक्सिमम पीपल यही रिग्रेट करते हैं जब मरने का टाइम आता है, खास मैं ऐसे करना चाहती हूँ नहीं कर पाई। अभी कोविड हुआ, बहुत सारे लोग का जान चला गया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि खास मैं ये करने वाली थी, कुछ ड्रीम होगा और वो नहीं कर पाते। दिस इज़ व्हाट कॉल एग्जैक्टली रिग्रेट। सो भगवान ने सबको भेजे यहाँ पे एक एक पर्पस लेके। यू आर बॉर्न टू बी हियर फॉर वन पर्पस, सो लेट आइडेंटिफाई दिस पर्पस, व्हाई यू आर हियर एंड वर्क ऑन दिस। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि मैं बता देती हूँ। कुछ लोग होंगे मैं बड़ा होके ये करना चाहती हूँ, सोचते हैं, उसके ऊपर में काम करते हैं, वो पीछे से कोई आया आपको एग्जाम्पल दे देता है कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा। वो सुन के नहीं यार सब बोल रहे मैं नहीं कर पाऊंगी, छोड़ देते हैं। दिस इज़ वन टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिव पॉइंट। हम लोग का इंसान का मतलब इतना जो बैड थिंकिंग होता है, हम लोग पॉजिटिव वाइब को जल्दी कैप्चर नहीं करते, हम लोग कैप्चर करते हैं नेगेटिव वाइब को। तो क्या होता है, हम जब नेगेटिव वाइब को कैप्चर करते हैं, जो अच्छा काम करने जाते हैं आधा से रुक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। वो भी एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन होता है। हम लोग कुछ एक लाइन में जाना चाहते हैं बट वो काम नहीं करके दूसरा काम करने लगते हैं, वो भी एक मतलब वन टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन हुआ है। तो बहुत सारा हम लोग का एग्जाम्पल्स है लाइफ में, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन के लिए हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो अफसोस रह जाता है जब हम किसी दूसरे को दिखते हैं, खुद को सोचते हैं कि अरे यार मैं ये करना चाहती थी नहीं कर पाई, अफसोस रहता है। दिस इज़ वन रिग्रेट। बट मैं आपको सब लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगी, कभी भी आप अपने लाइफ में रिग्रेट मत रखिए। अगर कुछ करना चाहते हैं, कोई एज नहीं रहता है, कोई क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं होता है अगर आप करना चाहेंगे। मोस्ट कैप्चर नेगेटिव वाइब, वेरी ट्रू सुरभि मैम। तो अगर आपको आज कुछ बनना है, आपको अपना पहचान बनाना है, आपको आइडेंटिटी बनाना है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे नाउ ऑनवर्ड। डोंट वेट फॉर फ्यूचर कि एक दिन तुम खुद दूसरे को देख के बोलोगे कि मुझे ये अफसोस रह गया था। दिस इज़ फास्टिंग। सेकेंड थिंग यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, क्या होता है हम कुछ करते थे मतलब मैं अभी एक लाइन में सपोज जा रही हूँ और उस लाइन के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ बहुत, मतलब मुझे पढ़ाई करके 90% लाना है बोल के, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके लिए प्रैक्टिस करती हूँ। क्या होता है, कंपटीशन रहता है, सारे लोग तो 90% नहीं रख पाएंगे, 90% के लिए ट्राई करेंगे तो 80 और 70% रख लेंगे। बट हम दूसरे को दिखते कंपैरिजन करते हैं कि अरे यार वो 90% रख रहा है, मैं नहीं रख पा रही हूँ। मतलब जो कंपेयर करते हैं खुद को दूसरे के साथ, एक कंपेयर करने का चक्कर में क्या होते हैं, हम जो लाइन में जाते हैं वो लाइन का रॉन्ग रोड हो जाता है, जिस वजह से ये भी वन टाइप सेकेंड रीजन हुआ हमारा रिग्रेट रहता है।
और वो चीज़ हम उसी टाइम में नहीं समझ पाते हैं। बाद में जब फ्यूचर में जाते हैं, अरे यार उस टाइम में मैं वहाँ पे वैसा नहीं कर पाई जिस वजह से ऐसा हुआ, बट एक्चुअली में रेस्पॉन्सिबल आप ही रहते हैं। मैं खुद नहीं मानूंगी मेरा गलती क्या है, बट एक्चुअली गलती मेरे में है कि मैं दूसरे के साथ कंपेयर किया, डिस्ट्रैक्शन ली, नेगेटिव को कैप्चर की, पॉजिटिव वाइब नहीं ली। क्यों आप दूसरे को कंपेयर करते हैं? बिकॉज आपके पास कुछ यूनिक स्किल है, आपके पास कुछ यूनिक थिंक है जो आपका सही रोड में लेके जाएगा, लाइफ में रिग्रेट नहीं रहेगा। बट आपको दूसरे के साथ, जो मेरा टॉपिक था रिग्रेट वर्सेस यू, आप दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं जिस वजह से आपका रिग्रेट रह जाते हैं। पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3, हम लोग का ज़्यादा उम्मीद रहता है। हम लोग इतना काम करते हैं बट उम्मीद इतना रखते हैं, और जल्दी बहुत मतलब सोचते हैं कि बहुत स्पीड में जाके हम लोग पहुंच जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कभी आप लोग ने कार ड्राइविंग किए हैं, कुछ लोग स्लो चलाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे चलाते हैं, कुछ लोग गुड इवनिंग शर्मिष्ठा जी, और कुछ लोग बहुत मिडिल लेवल में चलाते हैं। तो एक दिन वो तीनों लेवल वाला जो थ्री पर्सन से जा रहे थे रोड में, तो स्लो चला रहे थे, वो सबके पीछे रह गया। मिडिल वाला मिडिल में हुआ, तो अच्छा वाला बोला कि मैं आपके साथ नहीं जा पा रही हूँ, आगे जाके वेट करती हूँ डेस्टिनेशन पे। तो स्लो वाला का मन में ईगो आ गया, वो खुद सोचने लगा कि मैं सबके पीछे रह गया हूँ, मैं गाड़ी को स्पीड कर लेती हूँ, और वो स्पीड करके मिडिल लेवल क्रॉस कर गया, और जो स्पीड में जा रहा था उससे पास पहुँच गया। पहुँचने के बाद सोचने लगा कि अरे यार मैं तो उसके पास पहुंच गया, थोड़ा स्पीड कर देते मैं आगे पहुंच जाऊंगी। तो वो थोड़ा स्पीड में चला गया, तो आगे बहुत बड़ा हम्स आया। तो उसको पता नहीं था कि हम्स में जो स्पीड ब्रेकर यूज़ करते हैं, सिंस वो स्लो है, लर्निंग कर रहा है, बट उसको पता नहीं था आगे इतना बड़ा हम्स आएगा, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। और लकीली जो स्पीड में जा रहा था वो एक्सपीरियंस है, तो वो रुक गया। और जो स्लो मिडिल लेवल जो है, उसको तो मिडिल में जाना ही था, बिकॉज उसको बहुत डर लग रहा था आगे जाके कुछ होगा। दोनों बच गए, आखिर लॉस उसी का ही हुआ। तो हम लोग ऐसे कंपैरिजन का चक्कर में क्या करते हैं, गाड़ी को बहुत तेज़ ले लेते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तेज़ ले लेते हैं, वो ओवर स्पीड हो जाता है, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड लाइफ में ओवर थिंकिंग बोलते हैं। और जिस वजह से हमारे पास रिग्रेट बाद में आता है कि नहीं यार मैंने ये गलत चीज़ किया, नहीं कर पाई। अगर स्पीड में जाना नहीं चाहते, आपका लेवल और स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, जो टॉर्टोइज और रैबिट का स्टोरी सब लोग ने सुने होंगे। तो हम लोग को अगर हमारे स्पीड के हिसाब से हमारा जो भी प्रॉब्लम से उसको प्रैक्टिस करेंगे, हमारा जो ड्रीम से गोल में जाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो मे बी हमारे लिए लेट होगा, बट डेस्टिनेशन में तो पहुंच जाएंगे हम लोग। और जो फाइनल वन है, सबका एक ना एक दिन टाइम आएगा, अगर यू विल नेवर स्टॉप डूइंग दिस थिंग। मुझे जब तक डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचना है तब तक मैं रुकूंगी नहीं, तब तक मैं मतलब जो भी हो मुझे वो काम करना पड़ेगा। बट अगर कंपेयर करके मैं स्पीड में चला जाऊंगी तो ये नहीं होता है। जिसका जो लेवल है उसी लेवल में ही काम करना चाहिए। तो उसी लेवल में जाइए, काम कीजिए, और एक ना एक दिन ज़रूर मतलब आप पहुंच जाएंगे रोड पे। थैंक यू पॉलेवी फॉर गुड एग्जांपल इन 3 कार ड्राइवर्स। बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स भी जो होते हैं यहाँ पे, जो सुरभि मैम में पेरेंटिंग कोच है, वो भी बहुत बड़े एग्जांपल दिए। पेरेंट्स लोग भी क्या करते हैं, स्कूल्स एंड कॉलेज में दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं। तो क्या होता है, अपने बच्चे के अंदर में क्या अच्छा चीज़ है वो हम लोग नहीं समझ पाते, उसकी वजह से बच्चा भी ख़राब हो जाता है। बाद में हम लोग को अफसोस होता है, तभी टाइम नहीं रहता है। ऐसे सबका लाइफ में होता है। तो वो भी एक तीसरा नंबर रिग्रेट है। और फाइनल रिग्रेट जो होता है, आजकल का दुनिया में क्या होता है ना, सब मतलब किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, तो हम ऐसा कंपैरिजन करते हैं। मनी तो एक ना एक दिन सबके पास आएगा, बट आपको जो डेस्टिनेशन में पहुंचना था, आपको जो लाइफ में करना था, वो आप नहीं कर पाएंगे जब आप खुद को टाइम नहीं देंगे। खुद को टाइम देना सेल्फिश नहीं होता है। सब लोग सोचते हैं ना कि खुद को टाइम देना सब सेल्फिश बोलेंगे, सेल्फिश नहीं होता है।
खुद को टाइम देना मतलब मैं खुद नया नया कुछ सीखूंगी, नया बुक्स कुछ पढ़ाई करूंगी, कि नया नया चीज़ सीखूंगी, नया कुछ ऐसा करूंगी, सब लोग मुझे एक ना एक दिन रिमेंबर करेंगे। सो फाइंड द टाइम फॉर योर सेल्फ, बी हंग्री फॉर योर ड्रीम्स, बी हंग्री फॉर योर एम गोल्स। उसके लिए नया नया एक ब्लूप्रिंट बनाओ, उसके लिए नया कुछ सीखो, नया कुछ काम करो, ऐसा कुछ करो कि जैसे आपको खुद का खुद पता चल जाएगा मैं ऐसे ऐसे करूँगी तो आगे जाऊँगी। और मेरा जो दूसरा पॉइंट नंबर है कि मैं एक 2 एग्जाम्पल देती हूँ। 2 तरीके से फ्रेंड होता है। एक फ्रेंड जो होता है हमेशा वो सोचता है कि नहीं मुझे आज ये करना है, आज ये कुछ ट्राई करना है, कुछ नया रेसिपी करना है, कुछ नया मैथमेटिक करना है। बट और एक जैसे करता है मेरे से नहीं होगा, मैं बिल्कुल टच भी नहीं करूँगी। आप अगर अच्छा फ्रेंड के साथ रुकोगे, अच्छा इसमें रुकोगे तो आपको हमेशा अच्छा चीज़ करने के लिए मन करेगा और ट्राई करते करते किसी दिन वो एक अच्छा चीज़ आपको बहुत मतलब गोल के पास ही पहुंचा देगा। अगर हमेशा बुरा चीज़ सीखेंगे मेरे से नहीं होगा, मैं ट्राई नहीं करूँगी, तो आपको नहीं होगा। जो भी है आपका जो सराउंडिंग है, जो बोलते हैं ना जो पॉजिटिव बॉक्स ऑफ जार्स, तो आपका जो सराउंडिंग है अच्छा चीज़ के लिए, पॉजिटिवनेस के लिए फिल करके रखिए। डोंट बी अट्रैक्ट विथ नेगेटिवनेस सो सून। आप अगर नेगेटिवनेस सून अट्रैक्ट करके रखेंगे तो आपका दिमाग में वही चीज़ रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिवनेस शुड बी इम्पोर्टेंट। और जो लिमिटिंग बिलीविंग जो बोल रहे हैं आप, उसी में ही हैं। आप जो बोलते हैं ये नहीं कर पाऊंगी, बच्चे को भी हम लोग कभी कहते तेरे से नहीं होगा मत कर, तो ये सारे लिमिटिंग बिलीविंग है कि हम खुद सोच लेते हैं ये नहीं होगा, कभी ट्राई नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है सोसाइटी में, हम लड़की को नहीं तो किसी को देख के कमेंट मार देते हैं, बट हम सोचते नहीं है कि वो कुछ सिचुएशन में है इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो लिमिटिंग बिलीव जो होता है उसमें मत रुकिए, हमेशा अनलिमिटेड कुछ करने के लिए ट्राई कीजिए। एंड दैट अनलिमिटेडनेस विल गिव यू वेरी मच ऑफ हैप्पीनेस इन फ्यूचर। मुझे पता नहीं था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग का लाइन में दोबारा आऊँगी, मुझे पता नहीं था कि मुझे ओडिया टॉक बोल के कुछ करूँगी आगे, ताकि लोग मुझे मतलब बहुत मतलब अच्छा बोलेंगे। इवन एसिड अटैक फाइटर, इवन उसमें हमारा जो उड़ीसा में बहुत सारे जो फेमस लोग हैं उसमें भी वो लोग ज्वाइन किए हैं। तो बहुत सारे लोग आके मुझे बहुत अप्रिशिएट किए थे। मुझे पता नहीं था ये सब मैं करूँगी, और स्टार्टिंग में करने में बहुत दिक्कत आया था। मेरा कंपटीटर लोग मेरे से मिलके दूसरा वैसे कुछ कॉपी करने लगे, तो ये सब सामने सब स्ट्रगल आएगा, और स्ट्रगल को देख के हम पीछे छोड़ देंगे। वो लिमिटिंग बिलीव रखे नहीं कर पाऊँगी तब मैं छोड़ दूँगी, बस हो गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही 4 रिग्रेट हमारे लाइफ में रहता है। एक है अफसोस, जो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। अगर आप करना कुछ चाहते हैं अभी स्टार्ट कीजिए। अगर आपका एम पेंटिंग में है, अगर आपका एम पोएट राइटिंग में है, अगर आपका एम आगे जाके कुछ अच्छा चीज़ करने में है, प्लीज़ ट्राई इट फ्रॉम नाउ। सेकेंड चीज़ जो मैंने बोली, ओवर थिंकिंग का हैबिट छोड़ दीजिए। एंड ओवर थिंकिंग नॉट ओनली कि आपका जो ड्रीम को रुकेगा, बट ऑल्सो आपका जो हेल्थ जो है उसमें इम्पैक्ट करेगा, हाइपरटेंशन भी हो जाएगा और हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग को छोड़ दीजिए। थर्ड थिंग, लिमिटिंग बिलीव में मत रुकिए। एंड फोर्थ थिंग, हमेशा आपको एटमॉस्फियर, बकेट ऑफ पॉजिटिवनेस जार जो होता है उसमें रुकिए। और लास्ट 5th थिंग जो है सेल्फ केयर इज नॉट ए सेल्फिश, सेल्फ केयर इज टू लर्न द न्यू थिंग, हंग्री फॉर द न्यू थिंग, बिकॉज यू आर ए विनर। yes, I am a winner. So if you are a winner, who will stopping you? Nobody can stopping you. You are the reason for your regret, and you are the stopping for your issues, your situation. You only responsible for yourself. Nobody will responsible, and in future nobody will come to you to telling that नहीं यार, कभी कभी होता है गुस्सा आता है, हम बोल देते हैं यार इसके वजह से मैं ये काम नहीं कर पाई, ये गलत है। You are only responsible for your regretness, you are only responsible for your offshores, and you are only responsible for every situation. So you should know how to overcome this struggle, you should know how to overcome this limiting belief that is on your here. You have to apply it in positively. If you apply it differently, if you apply it negatively, you can't do anything.
I hope you all have been cleared this, what is the regret, 5 regret in your life. And apart from, if any regret is there, let me know, I will definitely answer here. If any question, please mark here, definitely answer you. Okay, the last line I want to tell you, to avoid the regret, you have to change your thought. Your way of thinking should be changed, and you have to change your limiting belief thinking. Change your thought, automatically you get idea, automatically that interest will come. You have for doing the goals, doing your interest things. That's it. So thank you guys for watching me, and don't forget that you are the winner for your limited surrounding environment, and you are the winner of your life. So don't regret yourself, give time yourself, and be surround, always think differently, change your thinking style, and you will definitely win. Thank you very much. Thank you Surabhi ma'am to giving me opportunity. Thank you very much.